So now we are going to discuss this topic. That topic is called as complement of set. So basically complement of set is nothing. It is the topic we have discussed the topic in the previous class, that difference, the difference of the two set. Complement is nothing. It is the difference between universal and the set A, universal set and set A. So this is the complement. Suppose let us try to understand this with the help of the example here. Suppose it is a universal set, and universal set, it is a set of natural number. And suppose if I take set A, एक set A मैं लेता हूँ और ये set A है set of odd numbers. If I need to find out the complement, तो generally complement is denoted by A dash, A dash. So complement में क्या करते हैं, complement में वो सारे एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर नहीं आ रहे, तो जो ए के एलिमेंट है उनको एलिमिनेट कर देते हैं, एंड ऑल द एलिमेंट रिमेनिंग इनसाइड द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स डिनोटेड बाय ए डैश. तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर में से अगर हम लोग इट इज यू माइनस ए, तो मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट में से सारे ओड नंबर को हटा दें, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से सारे ओड नंबर को हटा दें तो कौन से नंबर मिलेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर, तो हमें इवन नंबर्स मिलेंगे, राइट. सो दिस इज द complement. So let me give you the definition for this. So look at this definition of this complement of a set. Look at this here. Let U be the universal set, right? And A is a subset of U. So A must be a subset of U. Then the complement of set A is the set of all element of U which are not the element of A. U के सारे एलिमेंट, वो वाले सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो ए के एलिमेंट नहीं है. सिंबॉलिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इसको, अभी मैंने बताया ए डैश से. सिंबॉलिकली हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, राइट. डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू. इफ यू लुक एट दिस, इट इज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ए डैश इक्वल टू एक्स. एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू यू, राइट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं, राइट. Obviously that I have told you that a complement is the universal set minus the set. अगर set को उसके universal से minus कर दें हम लोग, difference निकाल लें, so that is equal to the complement of a set. So basically complement is nothing, it is like a difference when we are taking the difference from with respect to the universal set, right. So we note that the complement of a set can be looked upon alternatively as the difference between a universal set and the set A. Right, I hope this thing is clear to you. So now let me explain this complement of a set of Venn diagram. So this diagram is represented on your screen. So if you look at this diagram, it is the Venn diagram से कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है. ये जो सर्कल है ये सेट ए है, और ये जो सेट सर्कल के अंदर से जो बाहर वाला रीजन है, दैट शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हियर. शेडेड रीजन यहाँ पे कौन सा है, दिस इज द शेडेड रीजन. अगर मैं इसको मार्क करूं, सेट ए को अगर हम लोग छोड़ दें, यूनिवर्सल को, कंप्लीट यूनिवर्सल को लेना है, एंड वी डू नॉट टेक सेट ए, सेट ए को छोड़ दें तो दिस रीजन, सो दिस रीजन इज फॉर कॉम्प्लीमेंट, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो दिस रीजन इज फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये रीजन आएगा, राइट. Now let us discuss these properties of some properties of the complement of a set. Basically there are four properties are there, 1 2 3 4, right. So now let's discuss this property number 1. If you look at this property number 1 here, it's called as complement law. इसको बोलते हैं complement law. तो इसको complement law का फर्स्ट पार्ट देखिए. अगर आप किसी सेट का यूनियन करते हैं उसके complement से, then it always gives you the universal set. So this is the first complement law. Let us try to understand it with the help of example, then it will be more clear to you. Suppose एक universal set लिया मैंने 1 2 3 4 and 5, right. एक सेट लिया मैंने, सेट A contain element 1, 2, ठीक है. So now what is the complement of this A complement? A complement का मतलब है 1 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, and all the element in the universal set. तो universal set के वो सारे एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, और वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो ए के अंदर आते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब आप देखिए, यूनियन कीजिए, अगर आप ए का यूनियन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, सो इफ यू टेक द यूनियन ऑफ दिस सेट विद दिस वन, सो व्हाट इज दिस, यू नीड टू राइट ऑल द एलिमेंट 1 2 3 4 5. लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू यू.
So this property is verified now like this. I hope it is little bit clear to you. And if you look at the second property here, in the second property, it is given that if you take the complement, in the second property, if you take the set A और intersection करते हैं उसके complement से, so it always equal to 5. कुछ भी common नहीं आएगा. Why? क्योंकि जो set A में है वो उसके complement में वो element नहीं होते हैं. Complement में कौन से element होते हैं? The element other than set A, right? So it's equal to 5. Look at this. Let us try to understand this with the help of example. यहाँ पे A दिख रहा है आपको and it is A dash. What is the common element? A and A dash is equal to, nothing is common in this. So it's equal to 5. I hope this property is clear. Now let's move to the next property. Look at this second property here. It is called as De Morgan law. So there is a person, the name of that person is Augustus De Morgan. इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था. डी मॉर्गन लॉ है, बहुत फेमस लॉ है. इसको हम लोग क्लास 12 में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. द फोटो ऑफ दैट पर्सन इज हियर. सो दिस इज द फोटो ऑफ डी मॉर्गन हियर. So basically De Morgan, it is a quick information about De Morgan. 27 जून को हुए थे 1806 में मदुरा, मद्रास प्रेसिडेंसी इंडिया में. नाउ मदुराई तमिलनाडु इंडिया, इसको अब ये तमिलनाडु में है दिस प्लेस. उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी में होती थी ये 1806 में. एट दैट टाइम दैट पर्सन डी मॉर्गन, ही डाइड 18 मार्च 1871 लंदन में एट इंग्लैंड, वहां पे इनकी डेथ हुई थी. अगस्टस डी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन. सो ये फर्स्ट प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ पे? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में. एंड मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश मैथमेटिक्स, राइट. So now let's discuss these properties given by this De Morgan, the person De Morgan, right? So look at this property. So basically these are the two properties very important that explained by the De Morgan. So let us start with the first one. तो पहली property अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था A का A यूनियन B का डैश is equal to A dash intersection B dash, right? This dash is for complement. Now let me explain this to you. उन्होंने बताया था अगर आप A यूनियन B है और ये कंप्लीट ब्रैकेट में रखा हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, राइट, डैश. तो उन्होंने कहा था आप इसको एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आप पहले A यूनियन B करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. उन्होंने कहा अगर मैं इन दोनों के पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूं, इफ आई फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड B फर्स्ट, अगर मुझे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं तब क्या करना होगा? तब डी मॉर्गन ने बताया अगर यहाँ पे यूनियन साइन है, इट इज यूनियन, सो दिस यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन. अगर आप सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग सेड बाय डी मॉर्गन, राइट, लाइक दिस. सेकंड देखिए, सेकंड रूल जो इन्होंने बताया, दिस इज सेकंड वन. सेकंड वन ये था कि अगर वहां पे A इंटरसेक्शन B है और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है, टोटल का कॉम्प्लीमेंट है, टोटल A एंड A इंटरसेक्शन B टोटल का कॉम्प्लीमेंट है, और अगर आप उसको सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप A का कॉम्प्लीमेंट अलग और B का कॉम्प्लीमेंट अलग करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया था एक चेंज हो जाता है. अगर आपने सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट किए तो चेंज क्या हो जाता है? जो वहां पे अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरसेक्शन, सो इट बिकम यूनियन एट दिस प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गिवन बाय द डी मॉर्गन and very widely used in this chapter also. So I hope this property is clear to you and you can verify it with the help of the Venn diagram also. Now let's move to the next property. Law of double complement. So double complement का law क्या कहता है? अगर आपने complement किया और फिर उसका दोबारा से complement कर दिया तो आपको एक सेट मिल जाएगा. इसको एग्जांपल से बताता हूं. सपोज एक आपके पास एक सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5. ठीक है जी. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, A का कॉम्प्लीमेंट. A का जब कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो A के अंदर आते हैं, तो कौन कौन बचेंगे? 3 4 5. ठीक है जी. अब आप इस A कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज डबल कॉम्प्लीमेंट. इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देना किसी सेट का. ठीक है.
अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया है तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3, 4 और 5। तो इसका यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग इन द यूनिवर्सल सेट, इट्स रिमेनिंग इज 1, 2 is the remaining element. Now check it, what is 1, 2? Is it equal to A? Yes, it's equal to A. So that is the property. If you do the double complement of any set, then it comes out to be set itself. अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो उसी सेट के ही इक्वल आ जाता है, राइट? आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Look at this fourth property here. In this fourth property, law of empty set and universal set, इसको बोलते हैं law of empty set एंड लो ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो पहले एम्प्टी सेट का लो बताता हूं. अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं फाइव का, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो देन इट्स इक्वल टू यू. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा. देखो सेट, कोई यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी एंड ई, राइट? और एक सेट है यहाँ पे मेरे पास ए, सेट ए है और वो है 5 के इक्वल, खाली है, ठीक है, इज इक्वल टू 5. अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं यहाँ पे, किसका, 5 का, 5 का मतलब ए का. तो अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 5 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो यहाँ से कौन सा एलिमेंट हटेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं हटेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी ई सेम रहेगा. सो व्हाट इज इट्स इक्वल टू यू. सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. So if you take the complement of the null set, then it's always equal to the universal set, right? Now look at the second one. It is called as law of universal set. universal set का law. तो universal set का law कहता है अगर आपने universal का complement कर दिया, universal का complement का मतलब है universal के सारे element हटा दिया आपने, तो वो क्या बनेगा, जब सारे element हट जाएंगे, it's equal to 5. So let us try to understand it with the help of this example. Suppose ये u हमें यहाँ पे given है और मुझे u का complement find करना है. तो कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं. तो यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो कौन बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 5. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टू थिंग्स. द इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के. और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, नल सेट के, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. So now let us discuss, let us try to understand this topic complement we have discussed here with the help of some questions. Then this topic will be more clear to you. Now let's move to exercise 1.5.